الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 38واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت سے باقاعدہ آغاز فرما دیا اس نشست کا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 تا 141 کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمیشہ کی طرح موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں، قرآن اکیڈمی سے متعلق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید اضافہ ان کو عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محافل قرآنی پر ہونے والی چوتھی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ چوتھی برکت ہے۔ ناظرین کرام یہ حدیث آج مکمل ہوئی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ انہیں سکینت کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ یہ برکات قرآن حکیم کی محافل کی اللہ اس پروگرام کی بدولت ہمیں بھی، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، ہماری پوری ٹیم کو، وہ جو کیمرے کے پیچھے اللہ انہیں بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ برکتیں سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اپنے فارمیٹ اور ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ترجمہ آج کی آیات کا۔ البقرہ آیت 135 تا 141 آئیے ترجمہ سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اختیار کرو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور جو کچھ کے دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ کے دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اس اللہ ہی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اگر وہ ایمان لے آئیں اسی طریقے پر جس طریقے پر مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر آ گئے، لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں تو جان لو کہ وہ تو ہیں ہی ضد میں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کافی ہوگا آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اختیار کر لو اللہ کی بندگی کا رنگ، اور کون اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ کے اعتبار سے، اور ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اس اللہ ہی کے وفادار ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ پوچھئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے
उस अमल से जो तुम कर रहे हो। वो एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए वो कुछ है जो उन्होंने अमल कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुमने अमल कमाया, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उस अमल के बारे में जो वो करते रहे। नाज़रीन किराम, तर्जुमा आपने समाअत फरमाया सूरतुल बकरा आयत नंबर 135 था 141 का, और मुझे इल्म है कि आपको महसूस हो रहा है कि आज पहले पारे की तकमील हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन अभी तशरीह बाकी है। तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले रब्ते आयात को जानने की कोशिश करते हैं। आज की ज़ेर मुताल आयात और गुज़िश्ता आयात के रब को आइए समझते हैं रब्ते आयात के ज़ेल में। पहली बात, गुज़िश्ता आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम दुआ, फरमा बरदारी और औलाद को वसीयत का बयान था। बहुत अजीम दुआ थी ना। अच्छा पूछ लूँ, कितने अरसे में कबूल हुई थी? 2500 बरस में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथियों को याद है और यकीनन आपको भी याद होगी ये बात। तो गुज़िश्ता आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक अजीम दुआ, फरमा बरदारी और औलाद को वसीयत का बयान था। अब नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम में से यहूद व नसारा और मुशरिकीन सबको उनकी पैरवी की तलकीन है। यहूद व नसारा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे उनसे सिलसिला चला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ये अहले अरब हैं। इन सब को तलकीन क्या की जा रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की। ये जिक्र आज की आयात में इंशाअल्लाह ताला मजीद हमारे सामने आएगा। नाज़रीन किराम, रब्ते आयात के बाद तारुफ का सेगमेंट होता है। आइए तारुफ को जानें कि आज की आयात में किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, यहूद व नसारा को दो टोक अंदाज में दावत, बड़े क्लियर कट अंदाज में, दो टोक अंदाज में दावत दी गई है। दूसरी बात, मुसलमानों की वुसअत फ़िक्री का बयान। लोग मुसलमानों कहते हैं मुसलमान बड़े नैरो माइंडेड होते हैं। ओ भाई, हमसे बड़ा ब्रॉड माइंडेड कोई नहीं। अभी हम पढ़ेंगे, हम सारे रसूलों को मानते हैं, बाकी लोग सब रसूलों को नहीं मानते। तो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन है? हम मुसलमान। नाज़रीन किराम, गैरों के फितने और गैरों के हमले जो फ़िक्री सतह पर होते हैं, मरूब नहीं होना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए कि वी द मुस्लिम्स वी आर मोर ब्रॉड माइंडेड दैन द अदर पीपल हु आर नैरो माइंडेड। तो मुसलमानों की वुसअत फ़िक्री का बयान। और तीसरी बात, तारुफ के ज़ेल में मुशरिकीन के शिर्क और अहले किताब के बातिल दावों की नफ़ी। हर एक अपने आप को समझते हैं हम ही अल्लाह के चाहिए, हम ही कामयाब हैं, उनके दावों की नफ़ी की गई और इस्लाम के रविश पर आने का उनको हुक्म दिया जा रहा है। नाज़रीन किराम, तारुफ का बयान मुकम्मल हुआ। इसके बाद जी हाँ, आपको मालूम है माशाअल्लाह आयात का तज़िया हम समझते हैं। आइए चलते हैं आयात 135 से 141 के तज़िये की तरफ। सबसे पहले आयत नंबर 135 का तज़िया। तमाम मज़ाहिब अरब के मानने वालों को दावत तौहीद, यहूदी भी हैं, नसरानी भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब है ना, सबको दावत तौहीद पेश की गई है। आयत नंबर 136, मुसलमान तमाम अंबिया को मानते हैं। ये जो मैं कह रहा था ब्रॉड माइंडेड होना, हम मुसलमान तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। आयत नंबर 137, सहाबे किराम की अज़मत का बयान, उन जैसे ईमान लाने वालों को कहा गया कि तुम्हारा ईमान मोतबर है। इंशाअल्लाह तफसील आगे चलकर आएगी। तो आयत नंबर 137 सहाबे किराम की अज़मत का बयान। आयत नंबर 138 एक अल्लाह की बंदगी की पुरजोर दावत। इसके बाद आयत नंबर 139 ता 141, तीन आयतें हैं, 139, 140, 141। इनका जो मौजू है वो ये है, अहले किताब से दो टोक खिताब। अहले किताब से दो टोक अंदाज में खिताब। बनी इसराइल से खिताब तो मुकम्मल हो गया था ना, अब ये दो रुकू चल रहे जो आज मुकम्मल होंगे। इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, रुकू नंबर 15 और 16 की बात कर रहे हैं, और उनका जिक्र करके इनको दो टोक अंदाज में आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और सही मानों में मुस्लिम होने की दावत दी जा रही है। नाज़रीन किराम, तर्जुमा, रब्ते आयात, तारुफ और आयात का तज़िया अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब चलते तरतीब के मुताबिक एक एक आयत की तशरीह की जानिब। सबसे पहले सूरतुल बकरा आयत नंबर 135 का मुताला करेंगे। आइए चलते हैं इसके मुताले की तरफ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 135। आइए इसका तर्जुमा समझते। इरशाद हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम हो जाओ यहूदी या ईसाई तो हिदायत पा जाओगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इख्तियार करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता जो यकसू थे और
وہ शिर्क करने वालों में से नहीं थे। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलते। अल-बकरा आयत नंबर 135। पहली बात, अहले किताब की यहूदियत व नसरानियत की दावत की नफ़ी। ये लोग दावत देते थे यहूदी बन जाओ, दावत देते थे नसरानी बन जाओ। अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मुसलमान बन जाओ। क्या मतलब? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या है? मुस्लिम हो जाना और इस्लाम पर आ जाना। तो अब इस्लाम क्या है? आखिरी रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओगे तो मुस्लिम होगे, वरना नहीं। तो इनकी यहूदियत और नसरानियत की दावत की नफ़ी। साथ ही एक और बात तशरीह में लिखी है, मुशरिकीन के शिर्क का रद्द। मुशरिकीन के शिर्क का रद्द। फरमाना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे, तो मक्के वाले और अरब वालों को भी समझाया जा रहा है कि तुम उनकी नस्ल में होने का दावा करते हो और बुत परस्ती करते हो, शिर्क करते हो, जबकि उनका मामला क्या था? वो एक अल्लाह के लिए हनीफ थे, एक अल्लाह के लिए यकसू थे, तौहीद पर कारबंद थे। नाज़रीन किराम, चलते हैं अल-बकरा आयत नंबर 136 के मुताले की तरफ। इरशाद हुआ, क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। अल-बकरा आयत नंबर 136 है। आइए इसका तर्जुमा समझते हैं। इरशाद हुआ, मुसलमानों तुम कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस कलाम पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलादों पर, और जो कुछ के दिया गया मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम को, और जो कुछ के दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से। हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते और हम उस अल्लाह ही की फर्माबरदारी इख्तियार करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, तर्जुमा है ये अल-बकरा आयत नंबर 136 का। आइए चलते हैं इसकी तशरीह की जानिब। जो बात थी ना, वी द मुस्लिम्स वी आर मोर ब्रॉड माइंडेड देन अदर्स, अदर्स आर नैरो माइंडेड, अदर्स आर नैरो माइंडेड एंड वी आर ब्रॉड माइंडेड। इसका जिक्र यहाँ पर है। लिखा है, मुसलमान तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। अगर हम किसी एक नबी को ना माने तो हमारा ईमान है ही नहीं, हम मुसलमान ही नहीं होंगे। तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं। मुसलमान वसीउन नज़र होता है। हर दौर में अल्लाह ने जिन पैगंबरों को भेजा, हर दौर में जो ओरिजिनली किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, हम उन सब पर ईमान रखते हैं। जबकि बाकियों का हाल क्या है? लिखा है आगे हमने, अहले किताब को तंग नजरी तर्क करने की दावत। क्या तंग नजरी थी? यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते थे। नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। और हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया रसूल को मानते। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं। उनकी तंग नज़री पर उनको समझाया जा रहा है और तर्क करने की दावत दी जा रही है। अहम बात, इस्लाम पर बार बार जोर दिया गया है। व नहनु लहू मुस्लिमून, हम मुस्लिम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी मुस्लिम बनने की दुआ की थी और उम्मतम मुस्लिमा, एक उम्मत मुस्लिमा की दुआ की थी। ये है इस्लाम। और अब इस्लाम क्या है? आखिरी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना और उनकी तालीमात पर अमल करना, ये इस्लाम है। और इस पर बार बार इन आयात में जोर दिया जा रहा है। नाज़रीन किराम, अल-बकरा आयत नंबर 136 का मुताला मुकम्मल हुआ। चलते हैं अल-बकरा आयत नंबर 137 की तरफ। 137 इरशाद हुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 137 से। आइए इसका तर्जुमा जानने की कोशिश करते हैं। इरशाद हुआ, तो अगर वो ईमान ले आए इसी तरीके पर जिस तरीके पर मुसलमानों तुम ईमान लाए हो, तो वो हिदायत पर आ गए। लेकिन अगर वो रुख फेर लें तो जान लो कि वो तो हैं ही जिद में। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनकरीब काफ़ी होगा आपके लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन किराम, यह है सूरतुल बकरा आयत नंबर 137 का तर्जुमा जो आपने सुना। अल-बकरा आयत नंबर 137 का मुतालम कर रहे हैं। तर्जुमा आपने समाअत फरमाया ब्रेक से पहले। अब आइए चलते हैं अल-बकरा आयत नंबर 137 की तशरीह की जानिब। पहली बात तशरीह में जिक्र की गई है, नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के ईमान को बेहतरीन नमूना करार दिया गया। दावत दी जा रही ना अहले किताब को, कहा जा रहा है अगर ए मुसलमानों ये तुम्हारी तरह ईमान लाएंगे तो हिदायत पाएंगे। सहाबे किराम उस वक्त मौजूद थे ना रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। कुरान कह रहे हैं ए मुसलमानों तुम्हारी तरह अगर ये लोग ईमान लाएं तो हिदायत पर होंगे। तो सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, आखिरी रसूल मान रहे हैं, और सहाबे किराम का नमूना पेश किया जा रहा है कि इनकी तरह का ईमान लाओगे तो हिदायत मिलेगी। तो यहूद और नसारा को कहा जा रहा है कि तुम अब मुस्लिम नहीं जब तक कि आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के नमूने को बेहतरीन नमूना करार दिया जा रहा है। आज आपको और हमें भी देखना चाहिए कि आपके हमारे अकायद और ईमानियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक और सहाबे किराम के तर्ज़ अमल के मुताबिक हैं कि नहीं। यह है ईमान के लिए नमूना जो कुरान ने सहाबे किराम के हवाले से हमें इस मुकाम पर अता फरमाया है। एक और अहम बात, अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली का बयान। क्या अल्फाज थे? फसयकफीकहुमुल्लाह, इनके मुकाबले में अनकरीब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। किन के मुकाबले में? यहूद और नसारा हो या और मुखालिफीन हक हो, कौन काफ़ी है? अल्लाह। आज हम भी दीन का काम करेंगे ना नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर उठेंगे, कुरान की दावत को लेकर उठेंगे, तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी होगा। आज हम दुनिया से इसलिए डरते हैं कि हमने मिशन को छोड़ दिया, मिशन को इख्तियार कर लेंगे, ये तसल्ली हमारे लिए भी होगी, फिर दुनिया हमसे मरऊब होगी, हम दुनिया से रोब इख्तियार नहीं करेंगे, रोब नहीं खाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। चलते हैं अगली आयत, आयत नंबर 138 की तरफ। इरशाद हुआ सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 138 है। आइए तर्जुमा समझें। इरशाद हुआ इख्तियार कर लो अल्लाह की बंदगी का रंग, और कौन अच्छा हो सकता है अल्लाह से रंग के एतबार से, और हम तो उसी की बंदगी करने वाले हैं। रंग का बयान आ गया। आंखें बहुत से रंगों को देख लेती हैं, ये सलाहियत आंख में है। किरदार में भी कोई रंग होता है, आमाल में भी कोई रंग होता है, कोई रुख ज़िंदगी होता है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तशरीह में लिखी है, इस्लाम की रविश को अल्लाह के रंग से ताबीर किया गया। इस्लाम की रविश को अल्लाह के रंग से ताबीर किया गया। एक हदीस शरीफ में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह अकबर। मुसलमान की गुफ्तगू, उसका किरदार, उसके अमाल, उसका एटीट्यूड, उसका आउटलुक, उसका गेटअप, इवन उससे पता चलेगा अल्लाह का बंदा है। यहाँ क्या कहा गया? इस्लाम की रविश को अल्लाह के रंग से ताबीर किया गया। दूसरी बात, ये रंग पूरे वजूद और किरदार में नजर आना चाहिए। हमारे माथों पे टैग थोड़ी लगा होगा कि हमने कलमा पढ़ रखा है, हम उम्मती हैं ना, हमारे किरदार से पता चलेगा। अम्मा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह का अखलाक तो कुरान था। अल्लाह अकबर। हमारे अखलाक और आपके अखलाक कैसे हैं? कैसे लगता है? हमें देखकर किसी को रसूलुल्लाह याद आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या आज हम उम्मती होने की नुमाइंदगी कर पाते हैं? आप भी गौर कीजिए, अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तीसरी बात, नसारा की बपतिस्मा की रस्म की नफ़ी। बैप्टाइज करते थे ना, रंग चढ़ाते थे। यहूद में भी कुछ इस तरह का मामला था। कहा ये ज़ाहिरी रंगों से कुछ नहीं होता, हकीकी रंग इख्तियार करो अल्लाह के सामने झुकने का। नाजरीन, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, हमें कपड़ों की वजह से इज़्ज़त नहीं मिली है, हमें इस्लाम की वजह से इज़्ज़त मिली है। तो बपतिस्मा या बैप्टिज्म की, बैप्टाइज करने की जो रस्म थी नसारा में, उसकी नफ़ी हकीकी रंग है अल्लाह की बंदगी का रंग। अल्लाह मुझे और आपको भी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं, आयत नंबर 139। इरशाद हुआ कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 139। आइए तर्जुमा समझते हैं। इरशाद हुआ, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब, और हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम तो उस अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। बड़े प्यारे अल्फाज। यह अल-बकरा आयत 139। आइए तशरीह समझते हैं। पहली बात,
अहले किताब से दो टोक मुकालमा, हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुमने अपना जवाब देना, हमने अपना जवाब देना है। सोच समझ के मानो जो मानना है, जो मानना मानो, लेकिन सोच समझ के कल जवाब देना है। अगर हक को जानते बूझते रद्द करोगे तो कल अल्लाह का जवाब तुमने अपने अमाल का देना है, हमने अपने अमाल का। दूसरी बात, इस्लाम और इबादत में इखलास मतलूब है। पहले मुस्लिमून आया इस्लाम, फिर आबिदून आया इबादत, अब क्या आया मुखलिसून इखलास। इन्नमल अमालु बिन्नियात, माशाअल्लाह। अमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयत पर है। बड़े से बड़े अमल में खोट आ जाए, दिखावा आ जाए, नीयत में खोट आ जाए, अमल ज़ाया हो जाएगा। हदीस शरीफ मुस्नद अहमद में मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जिससे दिखावे की नमाज अदा की वो शिरक कर चुका। अल्लाह हमारे आमाल की हिफाजत फरमाए और हमारे आमाल और मेहनतों में अल्लाह हमें तौफीक दे के हम इखलास इख्तियार करें। नाज़रीन किराम, चलते हैं आयत नंबर 140 के मुतालिक की तरफ। इरशाद हुआ, अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन व नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 140। आइए तर्जुमा समझे। इरशाद हुआ, क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलादें यहूदी थे या ईसाई थे? पूछिए, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है कि जिसने छुपाई गवाही जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह बेखबर नहीं है उस अमल से जो तुम कर रहे हो। नाज़रीन किराम, अल बक़रा आयत नंबर 140 है। आइए इसकी तशरीह की तरफ चलें। इरशाद हुआ, इस ज़ेल में अब तशरीह समझते हैं। पहली बात, अहले किताब की गिरोहबंदी करने की नफ़ी। क्या गिरोह बना लिए थे? हम यहूदी हैं, यहूदी हो गए तो कामयाब हो गए, हम नसरानी हो गए तो कामयाब हो गए। ना 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 ना, किसी जमात में होने की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, फ़िरक़े की बुनियाद पर, गिरोह की बुनियाद पर, जो आज हमने टैग्स बना रखे, हमने मस्जिदों में नाम लगा रखे, इस बुनियाद पर नहीं। इनको भी कह दिया, इस बुनियाद पर कुछ नहीं कि तुमने अपने अपने नाम रख लिया, समझते हो तुम कामयाब हो जाओगे। बार बार जो बात आ रही है वो इस्लाम पर जोर है, और वह अल्लाह की इताअत करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उनकी तालीमात पर अमल करना। दूसरी बात, हक छुपाने पर अल्लाह ताला की तरफ से इजहार नाराजगी। इनकी किताबों में बशारतें मौजूद थी, छुपा भी रहे, और चोरी और ऊपर से सीना जोरी, हम ही कामयाब होंगे। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि कामयाबी किसी गिरोह की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ईमान और अमल के तकाज़ों की बुनियाद पर है। नाज़रीन किराम, अगली आयत आखिरी आयत है आज के मुताले के एतबार से भी, और पहले पारे की तकमील भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 141 इरशाद हुआ, तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। अल बक़रा आयत नंबर 141। आइए तर्जुमा समझते हैं। इरशाद हुआ, वो एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके लिए वो कुछ है जो उन्होंने अमल कमाया, और तुम्हारे लिए वो होगा जो तुमने अमल कमाया, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा उस अमल के बारे में जो वो करते रहे। नाज़रीन किराम, यह आयत पहले भी पढ़ चुके, इसीलिए हमने तशरीह में लिख दिया है। ये आयत इस सूरत की आयत 134 में भी आ चुकी है, पिछली प्रोग्राम में हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात, नस्ली फ़ख्र की नफ़ी और ईमान और अमल पर जोर दिया गया है। नस्ल में होना, चाहे पैगम्बरों की नस्ल में तुम हो, इस बुनियाद पर तुम्हारे लिए निजात नहीं है। ईमान लाओ आखिर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अमल के तकाज़े पूरे करो तो कामयाबी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 141 का मुताला मुकम्मल हुआ, पहले पारे की तकमील भी हुई है, लेकिन अभी और आगे जाना है। 30 पारे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के, अल्लाह ताला अपने फजल से हमें तकमील की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, कुरानी मालूमात के ज़ेल में आज एक और कीमती नुक्ता है, आइए देखते हैं। कुरान करीम के अल्फाज की तरह इसकी तशरीह भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, अल्फाज भी दी और तशरीह भी अता फरमाई। सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 19 अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा इन्न अलैना बयाना, फिर हमारे ज़िम्मे इस कुरान का बयान भी है। अल्फाज भी अल्लाह ने दिए, बयान भी अल्लाह ने दिया। हाँ, अल्फाज हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल फरमाए, और बयान और तशरीह भी हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतकिल फरमाई। नाज़रीन किराम, चलते हैं और आज देखते हैं कि क्या सवालत हमारे साथियों के जहन में उभरे हैं, उनके जवाबात की कोशिश करेंगे। जी, पहला सवाल आबिद आप कर लीजिए। जी,
رسولوں میں تفریق نہ کرنے کا ذکر ہے، یہ تفریق سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ، رسولوں میں تفریق نہیں کرنی، ہم مسلمان نہیں کرتے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک رسول کو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا، کچھ رسولوں کو ماننا، کسی رسول کا انکار کر دینا۔ جیسے ذکر آیا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا عیسائیوں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر ڈالا۔ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسولی، البقرہ کی بالکل آخر میں آیت آتی ہے، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھیں، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ساتھ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ سر الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے مضامین کا اگر کچھ اوور ویو دے دیا جائے۔ ماشاءاللہ، MBA کر کے بیٹھے ہوئے نا، تو عادی ہو چکے ہیں کہ چیپٹر راؤنڈ اپ ان کو ملنا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ پہلے پارے کی تکمیل ہو گئی، کچھ مضامین کا ایک جائزہ ہمارے سامنے آ جائے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے بات شروع کی، اللہ نے دعا سکھا دی، پورا قرآن ہدایت نامہ ہمارے سامنے۔ پہلے 2 رکوع میں متقین کا بیان آیا تھا، پھر کافرین کا، اور پھر منافقین کا بیان آیا۔ پھر 2 رکوع میں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور بنیادی ایمانیات کا ذکر آیا، خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا۔ پھر 9 رکوع مستقل تھے، بلکہ تقریباً 10 رکوع کہہ لیجئے مستقل تھے۔ 10 رکوع بنی اسرائیل کا ذکر آیا، جو ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، اور ان کے کرتوت ہماری عبرت کے لیے بیان کیے گئے۔ اور پھر 2 رکوع ہم نے ابھی پڑھے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جو پہلے پارے پر مکمل ہوئے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت تھی، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی، مشرکین بھی اور مسلمان بھی ان کو مانتے تھے، اور ایک ایسا ماحول جہاں مختلف نوعیت کے افکار ہوں تو اگریڈ اپون بات سامنے رکھنی چاہیے، اس سے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا حاصل بھی آ گیا کہ کس طرح انہوں نے کرتوت وہ اختیار کیے کہ اللہ کا غضب ان پر آیا ہماری عبرت کے لیے، اور دعوت توحید اور اس کے تقاضے بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات 2 ہی آج ہو سکے، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات کی طرف۔ لمحات تو شروع ہیں، سیگمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ آخری لمحات کا، وہ ہے حاصل مطالعہ۔ آئیے دیکھیں اس میں کیا باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب اور مشرکین سب کو اسلام کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور اسلام کے معنی فرما برداری اختیار کرنا۔ نمبر 2، اسلام اور عبادت میں اخلاص کی روش ضروری ہے، ورنہ نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے، دکھاوا جائے تو نیکی اور اعمال اور عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ تیسری بات، نجات کے لیے ایمان و عمل دونوں کے تقاضے پورے کرنا لازمی۔ پیغمبروں کی نسل میں ہونے کے دعوے دار تو ہو، لیکن عمل نہ کرو تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کسی گروہ میں ہو، جماعت میں ہو، اس بنیاد پر کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل لازمی ہے۔ ناظرین کرام، جائزہ لیتے ہیں، اور یہ کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی بات، کیا ہم اپنی نیتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے ہیں؟ نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں نا، یہ مشق ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، ہمارے ساتھیوں کو بھی، اور ہم سب کو ہمارے اس عظیم مشن میں، بصیرت القرآن کے پروگرام میں، اللہ اخلاص عطا فرمائے، اور دکھاوے کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں؟ ایمان کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ قرار دیا نا، تو کیا مطالعہ کرتے؟ اور کیجئے گا۔ تیسری بات، کیا ہم صحابہ کرام کے حالات زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان جیسا ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا نا، پڑھا تھا نا ہم نے، ان جیسا صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا تو ہمارا ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو ان کی سیرت کو پڑھے بغیر، ان کے حالات زندگی کو جانے بغیر کیسے اس ایمان کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں گے؟ چوتھا اور آخری سوال، کیا ہم اسلام کو مان کر اسلام یعنی فرما برداری کی روش اپناتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے، اسلام کیا ہے؟ خالی پڑھنا یا جھکنا بھی؟ جھکنا بھی، 24 گھنٹے کا جھکنا، پوری زندگی میں جھکنا۔ کیا ہم اس روش کو اختیار کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں گزشتہ سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب تو ہنٹس بھی دینا شروع کر دی گئی ہیں آپ کو۔ آئیے پچھلا سوال دیکھتے ہیں کیا رکھا گیا تھا۔ سوال ہم نے رکھا تھا، مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہیں، کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی 28 پارے کی۔ ہو سکتا ہے آپ نے سورۃ توبہ میں بھی تلاش کر لیا ہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن
سورہ انفال میں آپ نے تلاش کر لیا ہو، وہاں بھی آپ کو شاید مل گیا ہوگا، لیکن ہم نے ہنٹ دی تھی 28 سے پارے کی، اس سے جواب اسی کے اعتبار سے سورہ تغابن آیت نمبر 15، 28 سے پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 15، مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں، حلال طریقے میں مال کمائیں، جائز طریقے پر خرچ کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، ثواب ملے گا، حرام سے کمائیں گے گناہ ملے گا، جہنم میں جائیں گے، استغفر، یہ ہے آزمائش۔ اولاد کو نیک بنائیں، وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے میں اللہ کے احکامات کو پامال کریں، وبال جان ہو جائے گی۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ 28 پارہ سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں بیان آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، سوال ہے ہر نفس کو موت آئے گی، آیت کا حوالہ کیا ہے؟ ہر نفس کو موت آئے گی، آیت کا حوالہ آپ بتائیے۔ ایک ہنٹ دیتے ہیں، 17ویں پارے میں، پارہ نمبر 17 میں تلاش کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج 38واں پروگرام مکمل ہوا۔ 8 پروگرامز الفاتحہ پر مبنی تھے الحمدللہ، اور 30 پروگرامز میں ابھی پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک سلسلہ جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔